नमस्कार दोस्तों, फिर वही संडे, फिर वही हॉलिडे, फिर वही दिन और फिर वही सब्जेक्ट। ये जो वीडियो है ये अनशेड्यूल्ड है, ये मेरा शेड्यूल्ड वीडियो नहीं है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से एक खबर अपने सेक्टर में बड़ी तेज़ी से चल रही है, तो मैंने सोचा यार उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे कुछ बात करूं। You all know that we are a member of some or the other WhatsApp group, and on that group one letter issued by Reserve Bank of India to the Maharashtra Federation has become viral, and that letter is in respect of obviously the Banking Regulation Act. Since the passage of this act, the urban cooperative banks have been virtually mesmerized for its appropriate interpretation, and there have been several people who have been talking in different language, in different way, and how do they feel about it. This subject has come up very recently once again, principally because if you are a regular viewer of my channel, you will find that 2 weeks ago I had posted a video on Narmada Ghat, which was in response to couple of bankers in respect of the elections of their banks and how this BIR Act will impact them or affect them. And within these 2 weeks, some of the arguments which I placed in that particular video, which you can of course see even today, the arguments have changed substantially. I have been talking about these provisions for almost over last 20 months, and it has been my firm belief that the Reserve Bank of India or the central government post PMC is trying to tighten the noose around the urban cooperative banks because they want to control it. Now this letter, which is available on various WhatsApp group as well, confirms the fear that has been bothering me for quite some time. Of course, we all wanted a single regulator, and here is a single regulator what he is doing for you. Remember, the BIR Act was passed in September 2020 by both the houses. Interimly, there was some ordinance that was issued by central government for the implementation of various provisions. Forget about that part, because that part I have discussed in number of times. But President's assent to this particular amendment was received in the last week of September 2020. Let us presume that the assent was received on 30th of September. And the only one provision that has taken the entire sector by storm is the provision of section 10A2, which says that no director of a bank can hold the office of director continuously for a period of 8 years. I have been talking about this particular provision for quite some time, and I have also referred to the provisions or the manner and method in which this particular provision has been applied to commercial banks, where the commercial banks have a tenure of director 6 years for 6 years, and the age that has been prescribed is of 6 years. Age is prescribed is some 67 years or something like that. You will find all those arguments in all my previous videos. You just search for BIR Act amendment and its impact. You will find couple of arguments there and couple of other provisions. I am going to talk about this particular letter which has been issued by Reserve Bank of India. And the industry was talking, the urban cooperative banking industry was continuously talking about the retrospective effect or the prospective effect, so on and so forth. Several arguments were put forth. In fact, these arguments were coming to my mind was something is on the basis of the individual where he is placed and how he perceives this provision. मैं अगर डिफ़िकल्टी में हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि यार ये रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिवली है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं जितने भी आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर्स मेरे चैनल को देखते हैं, उनके लिए मैं एक थोड़ा सिंपल स्टैटिस्टिक्स जो आपके जहन में भी होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोविज़न किन को इम्पैक्ट कर रही है।
प्रिज्यूम करो कि 1434 बैंक्स आर देयर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर इन द कंट्री। प्रिज्यूम करो कि 15 लोग हर एक बैंक में डायरेक्टर है। इसका मतलब हो गया 21,500 के आसपास डायरेक्टर्स आज अपने देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्टर्स हैं। 21,500 is not a small number by any means. And then you have roughly 1,434 MDs and 1,434 CEOs. So forget about the CEO, क्योंकि CEO के बारे में जो 15 साल का कानून लाया गया उसके बारे में कोई प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव डिस्कशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है आप सोचो। वो तो जिस दिन से है उस दिन से आगे ही चल रहा है। हालांकि कुछ बैंक कुछ CEOs कोर्ट में गए हैं और वो जो सर्कुलर है वो सस्पेंशन में है, लेकिन ये जो 8 साल का प्रोविज़न है सेक्शन 10/2, ये 8 साल का प्रोविज़न बहुत लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। कितने लोगों को तकलीफ़ दे रहा है? 21,510 लोगों को। और इसमें ये सोचा जा रहा है कि यार जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस नहीं निकालती, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देती, तब तक हम लोग इसमें कुछ करने वाले नहीं हैं। वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइंस। और मैंने कई बार कहा है कि भाई if there is a law in the country, if certain regulations are there in the country, you are supposed to follow them. And I'm being informed by a couple of my colleagues that the Reserve Bank of India feels that for every law they cannot be issuing a regulation. As an urban cooperative banker, you must understand what the legal provision is, and that's where the trouble is. That's precisely where the trouble is. Because if you find the representation made by the Federation to the Reserve Bank of India fantastically argued, I mean there is no issue on that. The Federation has made all sorts of legal arguments which is appealing to Reserve Bank of India to take a review of this particular provision. Law is there, yes, Parliament has passed this, fine, no issue on that. But this Federation's appeal was made somewhere in the month of March or April, and the response has come in late June, and that was then circulated amongst the urban cooperative bankers. ये रिस्पॉन्स जो है ना क्लासिक है। क्लासिक इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिस्पॉन्स आया है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, ये रिस्पॉन्स अगर उनको नहीं सुनना है, अगर उनको सेक्टर की नहीं सुननी, तो देयर वाज अ सिंपल आर्गुमेंट विच दे कुड हैव मेड, एंड दैट आर्गुमेंट टू मी वाज दिस, दैट BR Act has a provision which says that it is superior to all other acts. और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे स्टेट लॉ में या मल्टी स्टेट लॉ में कोई भी प्रोविज़न हो, अगर उसकी कॉन्ट्ररी प्रोविज़न BR Act में है तो प्रोविज़न ऑफ BR Act विल प्रिवेल। मुझे लगता है कि फेडरेशन ने जो आर्गूमेंट किए थे वो आर्गूमेंट सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, मल्टी स्टेट में क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव लॉ में क्या है, वो सब आर्गूमेंट किए थे। और प्रिसाइजली ये जो रिप्लाई आया है, ये रिप्लाई ऐसे कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें डायरेक्टर्स का टर्म जो है वो 5 साल का था। रिजर्व बैंक होल्ड्स द व्यू दैट द 8-year provision that no director should hold office in the board of an urban cooperative bank continuously beyond 8 years is not in the conflict of either the constitutional amendment or the state law. Why they are saying this? They have a simple argument कि भाई हम लोग तो 8 साल बोल रहे हैं, आपका एक्ट तो बोल रहा है 5 ही साल। Now you cannot compare 5 years and 8 years like this. Typically हमें ये जो माइंडसेट रिजर्व बैंक का चल रहा है कंट्रोलिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पोस्ट PMC, वो समझने की ज़रूरत है। वो ये सोचते हैं कि 8 साल का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इसमें उन्होंने जो आखिरी पैराग्राफ में कहा गया है उन्होंने ये सिंपली कहा है कि हमें नहीं लगता ये रिट्रोस्पेक्टिव है, दिस इज़ नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। इसके 2 मायने होते हैं। उसका पहला मायना ये होता है कि मान लो 30 सितंबर को प्रेसिडेंट्स एसेंट इस बिल को मिल गया जिससे BR Act अमेंड हो गया, और जो प्रोटेक्शन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अंडर सेक्शन 56 था वो निकल गया। 56 कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन उसमें से बहुत सारे सबसेक्शन डिलीट हो चुके हैं, और इसकी वजह से ये सेक्शन 10A, 10B, 10B जो भी है वो सब अपने को अप्लाई हो गए।
उसमें 10(2)(a का जो प्रोविज़न है वो जो कहता है वो सुनने लायक है, आप भी सुन सकते हो। मैंने चेयरमैन का आंकड़ा आपको अलग से इसलिए बताया कि वो प्रोविज़न इस तरह से रीड करती है, वो प्रोविज़न पढ़ो आप। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्ररी कंटेंट इन द कंपनीज एक्ट 1956। इसका मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ कि BR Act is virtual, has a mirror reflection of Companies Act on the various provisions of BR Act. That is point number 1. Point number 2, this proves it. Point number 2 is, or in any other law for the time being in force, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा गया हो उसको इग्नोर करो। और फिर ये कहते हैं नो डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी shall hold office continuously for a period of exceeding 8 years। अभी इसमें उन्होंने एक 4 शब्द ऐसे लिखे हैं जिसमें जितने भी चेयरमैन लोग हैं या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको एग्जम्पशन है। पूरा सेक्शन अगर आप पढ़ोगे, वो पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको मतलब ये लगेगा, नो डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी अदर देन इट्स चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड shall hold office continuously for a period exceeding 8 years। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो चेयरमैन जो है ना 1434, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये 8 साल का अप्लाई नहीं होता है। सो जितने भी चेयरमैन लोग हैं वो तसल्ली मान ले कि दे आर आउट ऑफ इट। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 के आसपास जो डायरेक्टर आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है उनके लिए यह 8 साल का प्रावधान लागू हो गया। कब से लागू हो गया? कब से लागू हो गया? जिस दिन प्रेसिडेंट असेंट आ गया उस दिन से। फॉरगेट अबाउट रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, वो दे आर यूजिंग अ वेरी कैटेगरिकल स्टेटमेंट। द लेटर विच हैज बीन रिटन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फेडरेशन categorically says it is also advised that the implementation of provision of section 10(2) और जो भी सबसेक्शन उन्होंने कहे हैं टू एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ UCBs फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ BR अमेंडमेंट एंड विच कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। बात सिंपल, सीधी बात, एब्सोल्युटली नो बकवास। वो ये कह रहे हैं कि 30 तारीख को जो भी बंदे बोर्ड में है और जिनका टेन्योर 8 साल का हो गया है वो अंडर BR Act डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। फेडरेशन ने लेटर इसलिए लिखा था कि कई बैंकों को रिजर्व बैंक ये पूछ रही थी कि भाई BR Act तो आ गया सितंबर 20 में, लेकिन आपके बोर्ड में कितने लोग 8 साल के ऊपर है? कहीं 2 थे, कहीं 3 थे, कहीं 4 थे। तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन में आ गया कि भाई दिस इज़ अ वायलेशन। And in order to present the members' case to Reserve Bank of India, Federation had written to the Reserve Bank of India, Maharashtra Federation I am talking about. Fantastically drafted communication. Of course, the president of the Federation is a lawyer, Shri Vidyadhar Anaskar. So he has done the drafting perfectly, covering all the aspects which we feel should have been considered. But the response that we have got is categorical and clear. They are saying that this is effective from that date, that is 30th of September. इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त आपके बोर्ड में अगर कोई बंदा है जिसको 8 साल हो गया है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अभी मान के चलो कि आपका जो चेयरमैन है वो 8 साल के ऊपर बैठा है बोर्ड में, डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है सोचो। सब 1 अक्टूबर 2020 से आपका चेयरमैन BR Act के हिसाब से डिस्क्वालीफाई हो गया और वो 2021, 2022 आपके बैलेंस शीट पे और P&L पे और वेरियस डिसीजन पे सिग्नेचर कर रहा है, तो क्या होगा? विल दैट बी इलीगल? आई डोंट नो, बट देन देयर इज अ वे आउट। मान के चलो कि आपका चेयरमैन या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है इस BR Act की प्रोविजन से और वो गुड फेथ में अगर वो बिजनेस डिसीजन पे साइन कर रहा है, तो देयर इज अ प्रोविजन इन BR Act which definitely talks that any decision in good faith cannot be challenged otherwise. So all these things have been done in good faith. मुझे अचरज ये लगता है कि हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है जिसमें ज्योतिंद्र भाई ने नेगेटिव व्यू दिया था, डिसेंट नोट दी थी, तो डिसेंट नोट देने के बाद भी एक्सपर्ट कमेटी ने वो डिसेंट नोट को वर्चुअली कंसिडर नहीं किया
ये अपनी जगह है, वो क्यों नहीं कंसिडर किया, वो चर्चा अलग अलग होती रहेगी। वो मुझे इतना ये नहीं लगता है कि तुम्हें कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करने वालों की हार कभी होती नहीं है। अब ये जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि भाई हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और चैलेंज करेंगे, मुझे खुद को नहीं लगता कि हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसकी वजह ये है कि BR एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ है ना, ये अमेंडमेंट्स में हम लोग अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ आइडेंटिफाई करते हैं तो ये अमेंडमेंट चैलेंज होने की संभावना है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ नहीं है तो वो नहीं होगा। वो शुरू में जो बात हुई थी स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट इट। दी कॉन्करेंट सब्जेक्ट में सेंट्रल कैन पास, दिस इज़ अ सेंट्रल एक्ट। और हम लोग ये चाहते थे ना कि हमें सिंगल रेगुलेटर चाहिए, तो ये सिंगल रेगुलेटर आ गया। और मैं पिछले 10-12 महीने से जहाँ भी कहीं बात करता हूँ मैं यही कहता हूँ कि बी कंप्लायंट, दिस रेगुलेटर इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। I mean, they have 1,434 banks, and they have virtually mentioned even in the expert committee report that they would like to nudge for a merger. So that's not a subject of today's discussion. But the point is, let's not live in a fool's paradise. Let's understand that this provision has come in real-time basis. Probably RBI will not issue guidelines. Probably for the first time, the BR Act violation that you have committed, Reserve Bank may warn you and may leave you, but not next time. इसका मतलब ये है कि आपके बोर्ड में अगर कोई 8 साल के ऊपर का बंदा है, एक्शन आने के बजाय सोचो, टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो लॉयर कैन एडवाइज यू, क्योंकि लॉयर लोग जो हैं वो उनका इंटरप्रिटेशन उनकी तरह से करते, उनके हिसाब से करते। दे आर नॉट रेगुलेटर्स, इट्स अ रेगुलेटर हु विल इंटरप्रेट द BR एक्ट। मुझे ये अभी ऐसा लगता है कि ये जो 8 साल की प्रोविज़न आई है वो इट इज़ हियर टू स्टे। आई वॉज होपिंग दैट लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, when this particular provision is required to be implemented, Reserve Bank of India will come out with classical guidelines. लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरी लाल झंडी दिखा दी है। They have red flagged and they are saying that this is not retrospective. It is valid on that day when the president's assent was issued by the government of India. It would mean that 8 साल का इम्प्लीमेंट हो चुका है। आपको सोचना है कि आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इस वक्त बहुत सारी परेशानी आने वाली है, क्योंकि हमारे दिल में आज भी या तो स्टेट कोऑपरेटिव लॉ या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लॉ, इसकी प्रोविजंस हमारे दिमाग में हावी हो चुकी हैं और हम उसी प्रोविजंस को पकड़ के बैठे हैं। माइंड यू, इलेक्शन प्रोसेस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्ट्रार अंडर द स्टेट लॉ। इफ ही डजंट कन्वीन और कंडक्ट इलेक्शंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू कन्वीन, बिकॉज पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल अभी रिजर्व बैंक के पास है। और जो प्रोफेशनल का परसेंटेज उन्होंने बताया है वो भी आपको कंप्लाई करना है। कैसे करोगे, सवाल है, क्योंकि जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर आएगा तो वो तो सोचेगा नहीं कि भाई आप BR एक्ट वो तो इम्प्लीमेंट करेगा नहीं है। एंड देन पॉसिबली ईच बैंक विल हैव टू डिवाइज इट्स इलेक्शन रूल्स and appropriately modify their bylaws in terms of what? 51% shayad 51% of the board members' place will have to be earmarked in all categories for professional people as defined under section 10. किस तरह से होगा मुझे पता नहीं है। I am just giving you a wild thought. तुम्हारे पास 15 लोग हैं, 15 में से शायद 2 वुमेन है, एक SC/ST है या फिर एक OBC है, जो भी है, उसमें से 51% ने, टोटल में से 51%, 15 में से 8 लोग प्रोफेशनल चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी में हो। बट दैट प्रोविजन यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस। दैट इज वन पॉइंट आई फाइंड दैट टुडे और टुमारो वी विल हैव टू डू। सेकेंड पॉइंट विच आई फाइंड इज दैट you have drafted your bylaws on the basis of the provisions of the state cooperative law and the multi-state cooperative law. You have no choice but to reduce the term of office of the directors from 5 years to 4 years. That is one part. Secondly, 2 बार अगर बंदा 4-4 साल के पीरियड में बन जाता है तो उसके बाद वो डायरेक्टर नहीं बन सकता।
लेकिन हम लोग बहुत होशियार हैं। समझो 8 साल के लोगों को बिठा दिया कंटिन्यूसली, तो चर्चा ये चल रही है कि यार मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बड़े होऊंगा, मेरे को 8 साल नहीं, मुझे 25 साल हो गए, मैं सालों से बैठा हूँ, 25 साल हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे लड़के को लेके आऊँगा बोर्ड में। तो मैं नहीं, मेरा लड़का डायरेक्टर बन जाएगा बैंक में। रिजर्व बैंक आंख बंद कर नहीं करके नहीं बैठी है। आप ये करो, सब मिलके करो ये, कल जाके रिजर्व बैंक नोटिफिकेशन लेके आएगा कि 8 साल के बाद जो डायरेक्टर बैठता है उसके बच्चे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वो अभी नहीं है प्रोविजन, ये टुडे इट इज नॉट देयर, बट देन इफ वी एक्ट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गाइडलाइंस विच दे आर ट्राइंग टू इशू, दे नो हम लोग क्या चालाकी करने वाले हैं। तो रेगुलेशन जो इवॉल्व हुआ है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में, वो इन्हीं चालाकियों के कारण हुआ है। मुझे लगता है कि स्पिरिट जो है वो सर्कुलर का या फिर वो जो कानून है उसका जो स्पिरिट है, वी हैव टू फॉलो द स्पिरिट। और वेस्टेड इंटरेस्ट अगर नहीं बनवाना है तो फॉलो करना है। सीईओ को 15 साल के बाद क्यों रोका वेस्टेड इंटरेस्ट? डायरेक्टर्स को 8 साल का पुराना कई सालों से चल रहा है, ये कल नहीं आया है प्रोविज़न, हमें अप्लाई अभी हुआ है। ये जो बीआर एक्ट सेक्शन 10A का प्रोविज़न ऑलमोस्ट 4-5 डिकेड्स इट इज़ देयर, इट इज़ नॉट न्यूली ड्राफ्टेड बॉस। इसका मतलब ये है the provision existed, made applicable to us now, made applicable to us in the sense the urban cooperative banks now. दूसरी एक चीज़ मुझे इसमें ऐसी लगती है कि सवाल ये आएगा कि हम लोग अगर बायलॉज अमेंड करते हैं तो रजिस्ट्रार हमें परमिशन देगा क्या? क्योंकि जो स्टेट लॉ में प्रोविजन है उसके खिलाफ अगर आप कोई बायलॉज अमेंड करते हैं तो रजिस्ट्रार ना बोलता है, इट इज़ हिज प्रेरोगेटिव। 2 रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता आपने पहले ही चुन लिया है। आप सब ने आपके किसी भी स्टेट कोऑपरेटिव लॉ या सेंट्रल मल्टी स्टेट एक्ट में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की प्रोविज़न नहीं है। आपने बायलॉज अमेंड किए, राइट? रजिस्ट्रार ने अप्रूवल भी दिया। कैसे दिया? बिकॉज आरबीआई हैड इशूड अ डिक्टेट। सिमिलर डिक्टेट विल कम ओवर हियर। To fall in line with the provisions of BR Act, we intend to amend the bylaws. The terms of the board will be reduced from 5 years to 4 years. This is the explanation that you give when you submit the bylaws approval proposal. और दूसरा सेफ्टी नोट आपके लिए क्या रहेगा, सेफ्टी कैच आपके लिए क्या रहेगा कि आपको अगर बायलॉज अमेंड करना है तो आपको रिजर्व बैंक को प्रायर अप्रूवल के लिए भेजना है। भेज दो आरबीआई के पास प्रायर अप्रूवल के लिए, आरबीआई का अप्रूवल आ जाएगा। आप अगर बीआर एक्ट के सिंक में आपका बायलॉज अमेंड कर रहे हो, रिजर्व बैंक विल गिव यू इमीडिएट अप्रूवल। वंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्स, नो रजिस्ट्रार इन दिस वर्ल्ड कैन रिजेक्ट इट। दिस इज द रियल एंड ट्रू स्टोरी। हमारे एक बुजुर्ग डायरेक्टर हैं, वो काफ़ी साल बैंक में डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने मुझे 2 सवाल पूछे। एक सवाल था कि हमने यार इस पसीने से इस बैंक को बड़ा किया है, खून पसीना सींचा है, कोई पूछ नहीं रहा था जब हमारे पास लाइसेंस भी नहीं था। आरबीआई का लाइसेंस तो कई बैंकों को बहुत बाद में मिला है, 20-20, 25-25 साल के बाद मिला है। तो हमने हमारा जी जान इस बैंक को बड़ा करने के लिए लिया है, और आज आप ये कह रहे हो कि हम घर बैठे हैं, कैसे होगा? उसका जवाब ये आता है, the things have changed, the dimensions have changed, the sector has defaulted on number of counts, and Reserve Bank of India wants to protect the interest of depositors and wants to avoid creation of wasted interest. दूसरा सवाल उनका ये था कि भाई हम लोग बैठ जाएंगे, बैंक कौन चलाएगा? 2008 या 9 के आसपास, या शायद उसके पहले भी होगा, रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर निकाला है डूज एंड डोंट्स का, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। पढ़ो आप, सुनो इस वीडियो को। क्या कहता है ये डूज एंड डोंट्स का? डायरेक्टर्स का रोल बैंक चलाना नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू रन द बैंक, दे आर सपोज टू गिव विजन टू द बैंक, कीप द बैंक ऑन इवन कील, टेक इट फॉरवर्ड। Running the bank is not the role of directors, and if they start intervening in the administrative role, that is not their job. Still the smaller banks, बहुत सारी छोटी बैंकों में
चेयरमैन या डायरेक्टर लोग आके बैंक चलाते हैं। दैट इज़ नॉट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारी जो सीईओ और उसके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स बंदे हैं वो प्रोफेशनली बैंक चलाना चाहिए। ये सीईओ वाले बंदे क्या करते हैं छोटी बैंकों में, वो चेयरमैन ने बोल दिया मैंने कर दिया, जिम्मेवारी टालना, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे डोंट वांट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सीईओ सब नहीं है ऐसे, सब ऐसे लोग नहीं हैं। फिर भी मुझे कुछ लोग ऐसे मिले, अपने को क्या करना है, डायरेक्टर देख रहा है ना, चलने दो, अपना तो सैलरी चल रहा है। दिस विल एंड, दिस विल हैव टू एंड। It is the CEO and his team, it is their responsibility to follow the Reserve Bank of India and BIR Act and its guidelines. And then the role of directors will be limited to guidance to the bank. अब रिजर्व बैंक को ये ध्यान में आ गया यार ये डायरेक्टर बंदे लोग गाइडेंस में भी कम पड़ रहे हैं। क्या किया उन्होंने, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लेके आए, झगड़े हम उसके ऊपर, सुना नहीं रिजर्व बैंक ने। हाँ, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने उसको कहा है कि बीओएम जहाँ पे 51% प्रोफेशनल है वहाँ पे बीओएम बंद करो। कब आएगा बंद होने का उनका सर्कुलर पता नहीं है, लेकिन इसकी वजह ये है कि जो डायरेक्टर्स रूल्स जो मिक्सअप कर रहे थे वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी विल दैट बी ऑफ सीईओ एंड एमडी। अब इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, सीधा मतलब निकालिएगा। रोल्स हैव बीन डिफाइंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। Management, it's a role of management to ensure that bank remains on even keel, grows, new products are introduced. Implementation of new products is not the role of directors. वो डूज एंड डोंट का आप सर्कुलर पढ़ो, आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है, या फिर मेरा वीडियो देख लो, आपको ध्यान में आ जाएगा। तो मेरा जवाब ये था कि भाई डायरेक्टर्स, जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं जो 20-20 साल से बैंक में, वो घर में बैठे तो बैंक चलेगा कैसे, उनका काम ही नहीं है, तो वो ये काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी डायमेंशन जो है पूरा बैंकिंग का डायमेंशन जो है रिस्क मैनेजमेंट पे, कंप्लायंस पे जा रहा है, जहाँ पे डायरेक्टर बंदा पब्लिक वॉक इन लाइफ से आता है। बैंकिंग इज़ लॉजिक, बैंकिंग इज़ कॉमन सेंस। सो एनीबडी हु हैज़ गॉट अ गुड कॉमन सेंस he can run a bank. Of course, law, it is precisely for this reason I believe that banking has been defined as law and practice. Practice comes from common sense. Practice comes from trends and traditions. Law is where it is. Practice should not come into conflict of law. Now, when I say this particular video, take it with a pinch of salt. If I have been very blunt, my idea is to help you to understand the truth. Reading between the line is the title I would like to give to my channel. Maybe in few days I will do that. But then that's the idea. ये 8 साल का आ चुका। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो या फिर आपके मन में कोई सवाल है, पूछिए, ज़रूर पूछिए, जवाब ज़रूर देता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को दीजिए और उन 21,500 लोगों को दीजिएगा जो आज डायरेक्टर है। सोचने पे मजबूर करने वाला ये वीडियो है। थैंक यू सो मच।